Bro, it was not about taking time to compose for a film. I don't think I was ready really. I was not really ready. Because as I told you, that, I've had some instances where I met producers who wanted a particular kind of music. And that was a little difficult for me because I think I'm versatile enough to make all kinds of music. But if somebody tells me that you have to make this kind of music, I think it's a little difficult for me. Not because, I would like rather take a more difficult way out. One is that. Secondly, bro, I'm very, very happy with what Euphoria has achieved. You know, we are the only guys who are still existing in a scenario which is completely film-based. We are the only non-film guys who are doing it, and there are others who are here also. Mansi is here, Suchitra is here. There are people who have really survived this entire film onslaught. And there are other people who would believe in what I believe in. Having said that, I think as I told you, when once Bishwajit came to me and Mayaji came to me, they had a very simple brief. They said, we want your kind of music. We want the music that you believe in. If you make that kind of music, we're happy to have you. The surprise was the acting part. I didn't know that, they would give me, actually it's a tough role to do what I did, It's not as tough as Ira's role. Ira's role is very tough. But mine was also tough because, that's not the guy I am. I don't take shit from anybody. So, so in the film I had to be like, hamesha यूं करके और जो बोल रही हैं सुन रहा हूँ, that kind of thing. So that's not my character. So it was very difficult for me. But I was really more surprised that he wanted me to act in the film. I've done my best. I just hope people enjoy it. Bro, there are 6 songs in the film. You just heard Sotila, which is straight ahead, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead Euphoria, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, really, she is actually the migrant, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya. And it's the first time, I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Be Ghoda, since that song, that a children's song has been made in a Hindi, commercial Hindi film. And all, I think credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. प्रो मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. ये अपनी बीवी का गुलाम है. और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया है. यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग. बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं सहते रहते हैं सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार है. परिवार को लेकर ज्यादा वो होता है और अपनी लाइफ में लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं वो मैसेज देना चाह रहे हैं.
ब्रो मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मैं भी ऐसा इंसान हूँ, मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि मैं, क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीजों को एड्रेस करूंगा तो वो एक मुहिम बन जाती है, कि भाई दिस इज, जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूं बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ। नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहां पे गए थे, और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो। इतना एक तो इतनी इतनी खुशी थी वहां पर, पूरा जो एटमोस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी, आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंप्लिसिटी थी, वो देख के मैं सचमुच हैरान हो गया, और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं, और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े प्रैक्टिकल बना देते हैं, या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गाँव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं, वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा, वो ऐसे ही एक गाँव वाले पे बेस्ड है। और आप, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है, कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में है, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। बिल्कुल। मतलब मेरा मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूँ, बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत जरूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना जरूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में, यह अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में, कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपने पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ, मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, हम, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो मर्यादाएं हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ध्यान देती है। आई फील दैट वे। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरिवेटरी वे, बट हिंदी फिल्म्स बॉम्बे में जो भी बनती है, मैं सिर्फ एक ही कल्चर देखता हूँ, वो पंजाबी है। हर चीज में सिर्फ पंजाबी है, पंजाबी ही गाने हैं, पंजाबी ही शादियां हैं, पंजाबी ही गालियां हैं। बोले नहीं यार, असम में भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, क्या कहते हो? ऐसी बात थोड़ी है। एक, नहीं ये तो The beautiful, the gorgeous, the sexy host of Splitsvilla Season 8. Here we have Sunny Leone. Talia! Boys, move on!